Welcome to the session. It's a 7 days training on different HR subject. That is 7 HR essentials. Today we start the first topic that is very much important. The 4R of recruitment and selection. I had find out the 4 of all 7 topics. If you will remember this 4, what is the 4? Rightwise, today's session is 4R of recruitment selection. And what is their 4R in detail we study, and how to get the right person in our organizations. As well as we studied the total recruitment process. For your information, I have interviewed more than 60,000 people in my 32 years experience. From tea stall to 5-star hotel, I used to be conducting interviews. So let's we begin today's session, the 4R of recruitment and selections. Before we start, I will give you the brief introduction about me. Myself, Dr. Nimesh Rajput, CEO and founder of Focus Enabling Private Limited. I have studied BCom, MLW, LLB and PhD. My subject was in PhD, affecting factors to human performance in industries. I had done diploma in lean management. I had done diploma in psychometric testing and SSR. I am Dale Carnegie certified trainer, certified business transformation coach, certified facilitator, certified transactional analysis counselor, certified GRAIM oriented active learning facilitator. Apart from that, I have written the 14 books. Some of them HR and employees training related books. Some of books are related to students' health, and some motivational books are there. Okay. Before starting my Focus Enabling Private Limited HR management consulting firm, I had 25 years experience working as All India Head HR with the multinational company. The name you must be knowing about, the Enercon India Limited. It's a windmill manufacturing German multinational company where I had worked 15 years. Before that, I had worked around 10 years in different industries of Gujarat. Okay. I have been given lectures on more than 100 topics, and only this last 2 years, yesterday I was calculating 1,000 plus professional I have been trained. Last year, during the COVID-19 started, and during that period, about 2,000 teachers I have trained on the emotional intelligence. Okay, so this is about me. Now I am working as a CEO and founder of Focus Enabling Private Limited, and we do the consulting, HR system development and implementations. We do the employees training. I used to do a lot of HR subject related training, and recruitment placement services also we are doing. So this about me. Now, what is about the recruitment? What is the job of entrepreneurs and leaders? So what I observe, the leaders are spending only 10% for the recruitment time. And then 90% time they spend to correct the mistake of their wrong recruitments. क्या होता है कि रिक्रूटमेंट के टाइम पे ज्यादा ध्यान नहीं देने से गलत आदमी का रिक्रूटमेंट होता है, तो बाद में वो व्यक्ति सही काम करेगा उसका हमेशा आपको डाउट रहेगा, या वो काम करता है तो उसकी मिस्टेक सुधारने में या उसको सिखाने में, उसको सही तरीके से काम करवाने में आपका ज्यादातर समय आपको जाता है. तो अगर आपको उसमें से बाहर निकलना है तो आपको 90% टाइम आपको रिक्रूटमेंट में देना है, तो 10% टाइम आपको बाकी के काम में उसका गलती सुधारने में या उसका सुपरविजन में मिनिमम देना पड़ेगा. तो इसलिए रिक्रूटमेंट इज अकॉर्डिंग टू मी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्व का एक कार्य है एचआर का. अगर बाकी सब फंक्शंस आप देख लो तो उसमें मैं हमेशा रिक्रूटमेंट को इंपॉर्टेंट फंक्शंस के हिसाब से, वेरी एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट फंक्शंस के हिसाब से मैं देखता हूं. तो जो भी एचआर प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग एचआर में करियर बनाना चाहते हैं या जो लोग रनिंग करियर है अगर ग्रोथ करना चाहते हो, तो वो लोग
very good, who should be the very good in the recruitment and selection. तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस तो एचआर वाले को जानना जरूरी है, सब लोग जानते हैं, सब लोग सिखाते भी हैं कि क्या रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन सही रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कैसे किया जाता है उसको समझना बहुत जरूरी है। उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या गलती हो सकती है, उसके बारे में भी आपको समझना जरूरी है। देयरफॉर I understand today's session for everyone who are joining today. It is very much important for you. तो what is the recruitment and selection, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो according to me, if you see that recruitment is 50% of total HR, यानी कि HR के सभी फंक्शंस को आप एक तरफ पे रख दो और एक तरफ रिक्रूटमेंट रखिए, तो मेरे हिसाब से रिक्रूटमेंट इज 50% ऑफ टोटल HR। अगर आपने रिक्रूटमेंट सही किया तो आपका 50% काम हो गया। अगर आपने रिक्रूटमेंट सही नहीं किया तो बाकी का जो काम है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स है, कंपेंसेशन मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, एम्प्लॉयज एंगेजमेंट है, एम्प्लॉयज वेलफेयर, वो सभी जितने भी एचआर के बाकी के सब काम है उसमें आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर सही आदमी लिया है तो ट्रेनिंग में आपको कम ध्यान देना पड़ेगा, उसका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में कम ध्यान देना पड़ेगा, उसका कॉम्पेंसेशन का किच कम रहेगा, उसका डिसिप्लिनरी इश्यूज कम रहेगा। ही इज गोइंग टू बी वेरी मच एंगेज एंड कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसलिए आपको बाकी के जो एचआर फंक्शंस है उसमें अगर आपको कम काम करना है, उसमें आपको रिलैक्स लेना है, तो आपको रिक्रूटमेंट में पूरा ध्यान से काम करना पड़ेगा। दिस इज वेरी सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एचआर। तो देयरफॉर आई अंडरस्टैंड द रिक्रूटमेंट इज 50% ऑफ एचआर, एंड अगर आपने अच्छी तरह से रिक्रूटमेंट नहीं किया तो आपको ऐसे सब प्रॉब्लम्स मिलेंगे। एम्प्लॉयज अपने काम में ध्यान नहीं देंगे, वो इनडिसिप्लिन रहेंगे, वो लगेगा कि मैं यार कौन सी जगह पे आ गया, मेरा तो ये काम करना था, ये करना था। तो दे विल नॉट परफॉर्मिंग, दे आर नॉट कमिटेड, दे आर नॉट एंगेज एंड दे आर नॉट गोइंग गिविंग द जस्टिस टू देयर जॉब। सो रॉन्ग रिक्रूटमेंट इज ऑलवेज हैविंग द कॉज, दे हैव लॉट ऑफ लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, no output, only they waste time there, lack of sincerity, there is always conflict between the peoples and colleagues and boss, and wrong placements. तो रिक्रूटमेंट में जब ऐसी गलती होती है तो आपको ऐसे सभी तरह के एक्सपीरियंस होंगे। सो बीइंग ए एचआर यू हैव टू डील ऑल दिस काइंड ऑफ पीपल इफ यू डू द रॉन्ग रिक्रूटमेंट। तो इसलिए आपको रिक्रूटमेंट अच्छी तरह से समझना है। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। व्हाट इज द राइट रिक्रूटमेंट प्रोसेस? मेरा हमेशा कहना है, आई यूज टू से ऑलवेज, वी आर रिक्रूटिंग पीपल फॉर द जॉब, नॉट द सिलेक्टिंग फाइंडिंग द जॉब फॉर द पीपल। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? हम काम के लिए आदमी ढूंढ रहे हैं, आदमी के लिए काम नहीं ढूंढ रहे। तो इसलिए अगर जब भी आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना है, whenever you would like to start your recruitment process, you have to first, you should know the first, what is the job? The person who is going to recruiting, who is going to be join the organization, what job he should perform? What is our expectations? What is the expected result he will going to deliver? What will be the deliverable? That you should know first, then only you can start the further process of the recruitment and selections. So for that you should know what is the job descriptions. So first you have to ask whoever coming to demand your employees, we need that much, this much position, this much employees. You first ask what is the job description. You understand what is the job descriptions. Job description is nothing but the list of activities to be performed by the person. Secondly, what are the work area where he has to perform the job. Number 3, what is going to be expected results out of that job and to whom he is going to reporting, who will be his colleagues, what is their working environment. Everything may not be written in this job description, but being a HR professional, you are going to see that how it is going to be useful. That will come in the further sessions. Okay, so job description is basically the list of activities to be performed by the candidate who are going to be selected for the organizations, and what is the expected results we are looking for from the candidates.
Okay, so this is the basic requirement to be covered by the job descriptions. Number two, once you decided that these are the job to be performed, these are the activities to be performed by the persons, and these are the expected result out of that performance, then you should know to complete the job, to getting these things done, what are the skills, what are the job behaviors, what are the competence they require for the persons. Means this is the job. To completing job, what kind of human being required? Number one, what is the minimum education required to understand and perform this job? What is the physical requirements you should understand? What is technical knowledge required? Is there any clerical or calculations required? Everything you have to understand कि what is the job specification. ये काम जो है वो काम करने के लिए हम जो इंसान को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम अपॉइंट कर रहे हैं, उसमें क्या काबिलियत होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड जॉब स्पेसिफिकेशन. व्हाट इज द जॉब रिक्वायरमेंट्स. ओके, यानी कि ये काम है, ये कार्यावर्णन है, ये परिणाम चाहते हैं हम लोग. वो काम को अचीव करने के लिए वो व्यक्ति में क्या काबिलियत होना चाहिए. वो काबिलियत के बारे में आपको फिजिकल कैसा होना चाहिए. व्हाट शुड बी हिज फिजिकल फिटनेस रिक्वायर्ड. The person has to work physically or more mentally, or mentally and physically both. What is the work environments? So he had the experience of physically trained to work in such environment. He has to work in the factory area, in the office, in the outside the factory, or inside the ocean, or above the hill, wherever he has to work, or in the market. So you have to understand what is the job environment we are going to provide that person. Okay, and for that, what is the mindset, what is the physical and behavioral conditions required, and technical knowledge or non-technical knowledge, whatever the job behaviors require, competence require, काबिलियत require, वो उसको बोलते हैं job specifications. Okay, तो एक काम है और काम को कामयाबी से पूर्ण करने के लिए वो व्यक्ति में क्या जरूरी गुण, लाक्षणिकता चाहिए, उसके बारे में जो लिस्ट होता है वो उसको बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशंस, जॉब रिक्वायरमेंट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी इतना आपने समझ लिया तो उसके बाद में आपको समझना है, उससे पहले अगर आपकी नई फैक्ट्री है तो नई फैक्ट्री में आपको एज ए बीइंग एचआर यू आर गोइंग टू बी फर्स्ट पर्सन टू रिक्रूट जॉइन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको जॉब एनालिसिस करना पड़ेगा. जॉब एनालिसिस इसलिए करना पड़ेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जॉब्स है. एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि वो जॉब के रिलेटेड आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा. जैसे मैं जो कंपनी में काम करता था वहां एक इलेक्ट्रिशियन का जॉब होता था, जहां उसका क्वालिफिकेशन, बेसिक क्वालिफिकेशन इज आईटीआई इलेक्ट्रिशियन स्टेट पास. ओके, लेकिन वो आईटीआई इलेक्ट्रिशियंस को हम अलग अलग डिपार्टमेंट में रखते थे. जैसे एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिशियन होते थे हमारे यहाँ, और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिशियन होता था. तीसरा हमारा और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था जिसमें इलेक्ट्रिशियंस को हम रखते थे. जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग शॉप था हमारा, उसमें रखते थे. दूसरा एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, उसमें पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग शॉप था, उसमें हम रखते थे. चौथा हम इलेक्ट्रिशियन रखते थे हमारा विंडमिल मेंटेनेंस में, जिसको 100 मीटर हाइट पे काम क्लाइंब करना है, उसके ऊपर जाके कभी इलेक्ट्रिकल का मेंटेनेंस काम करना पड़ता है, हाई टेंशन लाइन जाता है उसके ऊपर काम करना पड़ता है. तो चारों तरह के जॉब के लिए हमको इलेक्ट्रिकल ही लगता था. लेकिन वो इलेक्ट्रिशियंस का वर्क एनवायरमेंट्स एंड वर्क कॉम्पिटेंस चारों पोजीशन के लिए अलग अलग रहती थी. तो इसके लिए आपको जॉब एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि आपको जितना हो सके वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा. उसके लिए आपको ये चारों जॉब के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना पड़ेगा. एक ही तरह की कैटेगरीज के आपको आदमी चाहिए. अगर सुपरवाइजर चाहिए, अगर आपको इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, अगर आपको मैनेजर चाहिए, तो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए कि उसमें जॉब क्या रहेगा वो आपको पूरा अच्छी तरह से पता होना चाहिए.
वो जॉब के हिसाब से आपको डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे मैंने इलेक्ट्रिशियन की बात की, तो इलेक्ट्रिशियंस को जो मेंटेनेंस में है तो उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नॉर्मल सिचुएशन में होता है, उसको स्टैंडर्ड्स जो चेक पॉइंट्स होते हैं उसको चेक करना होता है और क्लीनिंग करना पड़ता है या कुछ टाइटनिंग करना पड़ता है या ऑयलिंग ब्रशिंग करना पड़ता है, वो इतना ही काम रहता है। लेकिन जब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है तो इलेक्ट्रिशियंस को सबसे पहला उसमें माइंडसेट होना चाहिए फॉल्ट फाइंडिंग का, कि मैं फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करूंगा, सेफ्टी से काम कैसे करूं, कितना जल्द से मैं वो ब्रेकडाउन खत्म करूं। तो उसमें उसको एनालिटिकल एबिलिटी चाहिए, उसका माइंडसेट चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए और टेक्निकल नॉलेज साउंड चाहिए। तो मेंटेनेंस का हो गया। जो जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग था उसमें कॉइल बनाना था, उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए था, उसको पता होना चाहिए कि ऐसे बनता है, उसमें इतना कनेक्शंस होता है, ऊपर ये वायर होता है, नीचे ये वायर होता है। तो उसका एक एसओपी उसने एक बार फॉलो कर लिया, ज्यादा नहीं, लेकिन उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा लगती थी। जो थर्ड नंबर का जिसका इलेक्शन था, जो पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट था, उसमें चेयर टेबल रखा गया होता है, एयर कंडीशन एनवायरमेंट था, उसके पास पीसीबी आती है, उसको दो जगह पे सिर्फ सोल्डर करना रहता है और कुछ नहीं करने का। पूरा दिन उसको पीसीबी में 2 पॉइंट्स दिया गया था, उसके ऊपर उसको सोल्डर करने का होता है। एंड नंबर 4, जो चौथा इलेक्ट्रिशियन है जिसको हाई टेंशन लाइन 66 केवी 66 केवी हाई टेंशन लाइन होती थी, उसके साथ विंड मिल का जो पावर जनरेशन होता था उसको मेंटेनेंस करना पड़ता था। विंड मिल में कभी ब्रेकडाउन आता तो ही हैज टू क्लाइंब एटलीस्ट वंस इन अ डे, एक बार या 2 बार विंड मिल के ऊपर 100 किलोमीटर तक फिजिकल चढ़ के ऊपर खड़ा रह के काम करना पड़ता था। तो अगर ऐसे तो बताया कि हमको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, लेकिन यू सी दैट 4 डिफरेंट कैटेगरी हैज द डिफरेंट जॉब एनवायरमेंट and physical and mental skill required. This job analysis will also useful to write down the job descriptions as well as what salary you are going to offer. Because while you are recruiting, you should have the right salary to be offered to the person, because you must have learned the right man at the right place at the right time. The fourth R is the at right cost. तो राइट कॉस्ट मीन्स कैसे लाएंगे आप राइट कॉस्ट? तो उसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना पड़ेगा? अबाउट द जॉब मैंने जो बताया, व्हाट इज द जॉब, रिजल्ट एक्सपेक्टेड, वर्क रिलेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंडीशंस, यानी कि एनवायरमेंट्स क्या होगा, कोऑर्डिनेशन किसके साथ करना है, एक्सटर्नल है कि नहीं, इंटरनल है, उसको रिपोर्टिंग करना है, कुछ डेटा एंट्री करना है कि नहीं है। तो वही सब चीज जॉब डिस्क्रिप्शन में कवर हो जाना चाहिए। उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशंस, यानी कि expected qualification, experience and behaviors, physical and mental requirements to perform that job. Then job evaluations. Job evaluations means systematic method to decide the worth of the job. There are 4 jobs are there. इलेक्ट्रिशियंस का 4 काम था, तो हर 4 काम को हमको वेटेज देना पड़ता था। अगर आपको जॉब इवैल्यूएशन प्रॉपर करना है तो सेफ्टी का वेटेज किसके ऊपर ज्यादा है, वर्क एनवायरनमेंट का वेटेज कितना है, टेक्निकल नॉलेज का वेटेज क्या है, फिजिकल फिटनेस का वेटेज क्या है। तो वो सब में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कहां थी? जो विंड मिल के ऊपर सबसे हाइट पे काम करता था उसके ऊपर, तो उसको सबसे ज्यादा सैलरी मिलेगी। उसके बाद में सेकंड नंबर में मेंटेनेंस का व्यक्ति को मिलेगी, थर्ड नंबर में जो जनरेटर मैन्युफैक्चर करता था उसमें जाएगी, और फोर्थ नंबर जो जिसको अच्छा सा वर्किंग एनवायरनमेंट में टेबल चेयर पे उसके सामने पीसीबी आएगा, उसको सोल्डर करने का, उसको कम से कम सैलरी मिलेगी। तो आपको अगर ये जॉब इवैल्यूएशन पता नहीं है, जॉब की डिटेल नहीं निकाली, तो आप राइट मैन को राइट कॉस्ट में रिक्रूट नहीं कर पाओगे। जो व्यक्ति विंड मिल मेंटेनेंस में चलता है उसको आपने पीसीबी में लगा दिया, या जो पीसीबी में वाला को आपने मेंटेनेंस में लगा दिया, तो आउटपुट सही नहीं आएगा। You will be going to be make the wrong recruitment. Therefore, you should know the job first. उसके बाद ही आप आगे कर सकते हो। तो जॉब स्पेसिफिकेशन आ जाने के बाद the next is the process of the recruitment. Recruitment is about to invite. Recruitment is inviting application for the vacant positions.
आपके संस्था में जो भी खाली जगह है, रिक्त स्थान है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन मंगवाना है. दैट इज द कॉल प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट इज इनवाइटिंग, अट्रैक्टिंग द कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द पोजिशंस. तो उसके लिए आपको अलग अलग सोर्सेस को आपको यूज करना पड़ेगा. यू मे गो फॉर द न्यूज़पेपर एड, जॉब पोर्टल्स, कंसल्टेंट, notice board ad, or the reference, internal reference, or your data bank website through applications, whatever source you can use for the recruitment. That is the process of the inviting application for that positions. Okay. Then what is the next? Once you got the recruitment applications, सब कुछ एप्लीकेशन आ गई, तो आपको जो भी वैकेंसीज है 100% मैचिंग एप्लीकेशन नहीं मिलेगी. उसमें से 70-80% एप्लीकेशन ऐसी होगी कि जो आप जो वैकेंसी के ऊपर काम करें उसके लायक नहीं रहेगी, उसको सुटेबल नहीं रहेगी. तो आपको 70-80% बाकी की जो वैकेंसीज है उसको आपको डेटा बैंक में जाने देना है कि आज नहीं तो कल फ्यूचर में कभी भी रिक्वायरमेंट होगी तो काम लगेगी करके. उसको जो जो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, कमर्शियल जो भी रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से डेटा बैंक फाइल में उसको फाइल करना है, स्टोर करना है, उसका डेटा मैनेज करना है. बाकी की जो 30 या 20% आपको सुटेबल लगी, यानी 50% सुटेबल लगी, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच होती है, तो उसको रखना है. एक बात समझ लीजिए कि आपको 100% मैचिंग कैंडिडेट कभी मिलेगा नहीं. 100% नहीं मिलेगी. आपको 50%, 60%, 70% अगर आपको मैचिंग कैंडिडेट मिलता है तो यू हैव टू appoint such candidate, you have to offer that candidates, and what is the gap between the required competence and available competence. That gap can be filled by the training and development process. Okay, so here you have shortlisted the candidate as per the specifications or job requirements, it is okay. Then you have to go through the total resumes, and if there is any doubts, because there are lot of resumes I have gone through, there is ambiguities and not clear about many things. In that situation, if you find any doubt, like year of passing is not mentioned, date of birth is not mentioned, his when he did left the last job, currently working since what time, what is his current CTC or gross salary is not mentioned, what is his expected salary. So some such kind of lot of questions arise in your mind. So first you should have the doubts list, and you can call to the candidate and you clear the doubts through the telephonic interviews. Then you call for the preliminary interviews. And what is the interviews? What you do in the interviews? Interviews में हम क्या करते हो? So there is a process of interview. Interviews में first we collect the information about the candidates. Our role is to collect the interviews about the candidate. What is the role of HR in the interview panel members? Being an interview panel members, you are going to be sit in the interview panel. Somebody will ask you, what is your role? आप क्या करोगे अंदर इंटरव्यूज में बैठ के, या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपका काम क्या है? तो मैंने अब तक आपको बताया कि यू हैव टू फाइंड आउट द जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशंस, shortlisting the candidates. Is there any doubts? You can call and clear the doubts. Then you finally shortlist the candidate and call for the preliminary interviews. Okay. So before that interviews, also people who are going to be part of your interview panel members, you have to inform them in advance. Okay, this is the job descriptions. We are going to be selected, and your role is to select, check, verify the candidate technically. Yeah, job knowledge related things you have to ask them. Before that, if there is any questions paper are required to be prepared to test the practical test or written test, you can do that also. Some HR used to conduct some psychometric tests, situation reaction test. तो ये सब टेस्ट आपको करना है, प्रैक्टिकल टेस्ट करना है, थियोरिकल टेस्ट करना है, साइकोमेट्रिक टेस्ट करना है, या फिजिकल टेस्ट करना है. तो उसकी तैयारी पहले से हो जानी चाहिए. इंटरव्यूज के दिन कैंडिडेट आए उससे पहले आपको तैयारी होनी चाहिए. कौन वो टेस्ट के लिए, कौन इंटरव्यूज के लिए हाजिर रहेगा, गेट पे पहले से इन्फॉर्म कर दो. अगर आपके पास सिक्योरिटी गेट है तो
या रिसेप्शन में इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये इतने इतने कैंडिडेट ये टाइम पे ये तारीख पे आने वाले हैं, तो उसका रिसेप्शन अच्छी तरह से हो। बिकॉज इंटरव्यू प्रोसेस इज वन ऑफ द प्रोसेस द ब्रांडिंग ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी संस्था में कोई इंटरव्यू के लिए आता है, उसका रिसेप्शन कैसे होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसका इंटरव्यू कैसे लेते हो वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कैंडिडेट आपके यहां सिलेक्ट हो या रिजेक्ट हो दैट इज सेकेंडरी। प्राइमरीली कि वो कैंडिडेट आपके यहां से आपकी और आपकी संस्था के बारे में क्या एक पॉजिटिव इमेज लेके जाते हैं। नहीं तो मार्केट में ऐसा होगा कि एक कंपनी में ठीक नहीं है, एक कंपनी में इंटरव्यू में जाना नहीं है, यानी कंपनी के बारे में नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि लोग आपके यहां अप्लाई नहीं करेंगे। मैंने ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज देखी है, क्योंकि मैं रेगुलर मैन पावर प्लेसमेंट्स का अभी काम करता हूं, तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि वो कंपनी का नाम देंगे नहीं, ये कंपनी में आपको इंटरव्यूज में जाना है, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड हुआ है, तो बोलता है वो कंपनी में हमको नहीं जाना है, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ बैड एक्सपीरियंस विद द अदर कैंडिडेट्स। वो कैंडिडेट अपने सर्कल्स में सराउंडिंग में बात करते रहते हैं, और छोटा सिटी होगा तो उसमें फैल जाएगी बात। तो इसलिए यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ बीइंग HR प्रोफेशनल्स, हाउ यू कैन गिव द पॉजिटिव इमेज टू द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट को आप सही इंपैक्ट, सही इमेज कैसे देंगे, इसलिए वेल प्रिपेयर्ड मैनर्स में आपको तैयार होना है। इंटरव्यू के दिन बहुत बार जो लोग इंटरव्यूज पैनल में बैठते हो, दे हैव टू बी ऑल्सो वेल ड्रेस्ड। इंटरव्यू में आने वाला तो वेल ड्रेस रहेगा ही, लेकिन इंटरव्यूज जो कंडक्ट कर रहे हैं उसको भी वेल ड्रेस रहना चाहिए, क्योंकि दे आर जस्ट स्पेयरिंग द इंप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपके क्वेश्चंस ऑल्सो वेल प्लान, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। आपको क्या जरूरी है जॉब के लिए वही सवाल पूछना चाहिए, सबसे पहले उसका ऊपर फोकस होना चाहिए। इंटरव्यू में मैंने बहुत लोगों को देखा है कि फालतू बात करते हैं। एक थे हमारे, तो वो तो बोलते थे कि आपके गांव में भाजे कौन सा होता है, वहां तक बात करता था। अरे भाई वो तो बाद में बात करो, पहले ज्वाइनिंग होने के बाद, पहले तो उसका जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है उसको मैच करो, उसके बाद में सवाल सब पूछिए। तो फर्स्ट योर रोल इज इन द HR टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट्स, their job and their competence. So, interviews is to collect the informations, number one. Number two, convert in competence to the job. Whatever informations you have collected through the candidates, through this resume, then interview process you have verified that, any doubts you have cleared in the personal interviews, then you have to convert with the job specifications, whether it is matching or not, with the it is competence to the job. ओके, तो आपने जो इंटरव्यूज में जो सवाल पूछे, जो इंफॉर्मेशन आई आपके रिज्यूमे के साथ, जो भी कुछ डाउट था आपने क्लियर किया, और जो कैंडिडेट के पास से आपको माहिती मिली उसको जॉब की जो जरूरियात है, उसकी जो काबिलियत है, उसके साथ कितनी मैच होती है, उसका मेल कितना बनता है, वो आपको करना है। व्हाट इज योर रोल? टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, collect into job competence and give the informations. It should not be one-sided. The next, you have to give the information about your organizations. What is the job expected from the candidate? What is the expected job behavior from the candidate? What are the terms and conditions? What are the facilities you are providing? Once the candidate will be joining, how he has to join, what will be the job responsibilities, everything you have to give the information. You have to ask at the end of the interviews, do you have any question? Such kind of questions you have to ask. आपको कुछ सवाल है, ऐसा कैंडिडेट को लास्ट में पूछना है। इंटरव्यूज में टाइम में आपको ऐसा नहीं है कि वो कैंडिडेट जब तक वो फेल हो जाए, अपना आंसर सही नहीं दे, तब तक अपना नॉलेज प्रदर्शित करने का मौका देना है, ये नहीं है, वो स्कोप प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको इंटरव्यूज में कैंडिडेट को कंफर्ट देना है कि वो अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट को एग्जिबिट कर सके। तो वो एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज, टू द पॉइंट बात करना है, और यू हैव टू बी रिलैक्स एंड मेक देम द रिलैक्स ऑल्सो। ओके, तो कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन
in the competence and give the information about the job and about your organizations. What is the interviews? Ask, observe, listen, integrate and match. This is the role of HR. Ask, observe, integrate and the match with the job requirements. So this is the basic fundamental role of HR during the interview process. Somebody will ask you, what is the role of HR in the interview? So you have to say this. You should know, without knowing the job description, job requirements, you are not allowed to start interview process. Many times people used to say me that, sir, आज आपको ये इंटरव्यू लेना है, तो मैं बोला ठीक है, मेरे को पहले वो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, अगर कोई कंपनी में जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया नहीं तो मेरे को सवाल पूछना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या क्या काम करने का रहेगा, ये पोजीशन में क्या जिम्मेदारी रहेगी, आप उसका पास से क्या काम करवाओगे, क्या आउटपुट लेंगे, किसको रिपोर्ट करेंगे, कहाँ काम करेगा, उसके बाद में मैं उसका इंटरव्यू देता हूँ. अदरवाइज हम लोग गलती कर सकते हैं. तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड द शॉर्ट लिस्टिंग, देन द इंटरव्यू प्रोसेस which I have explained you. The next process is the offering the candidate. At the time of offer, the role is HR is very much important. Number one, first you have to decide what is the position, यानी कि designation you are going to give the candidate. It should be well defined. Many times at the time of vacancy, what we declare, that time we have declared some designation. But while we are taking the interviews, we find that this candidate is not suitable for that position, but below one rank. We can keep at least 6 months or 1 year, then after we can promote. So accordingly, you have to give the designation. Sometimes we can find the higher qualified candidate, because his existing position is just similar whatever we will declare, and he voiced that he should be one step ahead. So accordingly, you have to decide what is the right position to be offered to the candidate. Number two, the most important things, the date of joinings and the salary to be offered. The salary offering is the important black and white job. You have to give everything black and white. Many times I have observed that the candidate is telling about his net pay, and HR has the perception that the take home and CTC, there is a conflict. Candidate said, okay, I need 70,000 per month. HR, okay, no problem, we will give you the 70,000. And you will be offered. Once it is not clear in the writing that this is your monthly gross, these are the liabilities, and after deduction, your monthly take home will be this much amount. This statement to be shown to the candidate, you have to give the signature, take the signature with all and terms and conditions with the date of joining. Otherwise, after joining, first salary when the candidates get, he feel confused, he feel cheated कि सर आपने तो मेरे को 70,000 बोला था, लेकिन मेरे हाथ में तो 60,000 ही आया. बोला कि आपने बात सही है, मैंने आपको 70,000 ही बोला था, लेकिन 70,000 हमारे यहाँ सिटी से है. और बहुत बार मैं कंसल्टिंग करता हूं तो बहुत सी इंडस्ट्रीज में ऐसी रॉन्ग प्रैक्टिसेस है, और बोलता है कि सर हम लोग इतना सैलरी, मेरे को ये आप बोलो ही मत इतना सैलरी देते हो, ये सब गलत है. आप उसको बताओ, ये जो वर्कर्स कैटेगरी या जूनियर कैटेगरी के लोग हैं, उसको बताओ तुम्हारे हाथ में कितना रुपया दे रहे हो, और मार्केट के हिसाब से आप सही सैलरी देना चाहिए. तो एट द टाइम ऑफ ऑफर, वॉट एवर सैलरी यू आर ऑफरिंग, यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि ग्रॉस क्या रहेगा, सीटीसी क्या रहेगा, उसके बैंक अकाउंट में कितना रुपया हर महीने जमा रहेगा. अगर ये बात आपने क्लियरली कर दी, उसके बाद में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, लिव बेनिफिट्स क्या है, वर्किंग आवर्स क्या है, अदर फैसिलिटीज क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, फूड फैसिलिटी है, एकोमोडेशन आप दे रहे हो, क्या जो भी है, you should explain at the time of interviews. Many times you are providing the facilities, but at the time of interviews you have not declared to candidate. What happened? The candidate may apply 5-6 places, and he will get some another post offer from other organization. That person has explained that they are providing the food facilities, transportations, accommodations. You are also providing, but you have not explained.
so you will lost that right candidate. Okay, so you have to mind well everything you have to explain in detail at the time of offer. Okay, now after offer there is a joining formalities. At the time of joining, onboarding of the candidate is a very important process. He should know this is the very important person is joining your organizations. You have to create that environment, that image. That person should also enthusiastic to join your organization. He feels something proud कि yes, मैं अभी एक कंपनी में ज्वाइन हुआ हूं, उससे और अच्छी कंपनी कोई है ही हो ही नहीं सकती है, मेरे को मेरा करियर इसमें बनाना है. तो उसका ज्वाइनिंग के टाइम पे बहुत बार देखा कि कैंडिडेट आफ्टरनून तक उसको बिठा के रखते हैं एट द सिक्योरिटी गेट या रिसेप्शन में, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है. एचआर वाला कुछ दूसरे काम में, दूसरी मीटिंग में बिजी रहता है. तो मेरा आपको हमेशा एडवाइस है कि ऑलवेज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग यू ऑल्सो इन्फॉर्म इन एडवांस टू द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वन पर्सन यू मेक अवेलेबल टू टेक केयर ऑफ द न्यू पर्सन ज्वाइनिंग. तो उसको लगना चाहिए कि भाई उसको कंफर्ट मिलना चाहिए. पहले दिन जैसे ससुराल में जो नई बहू आती है, शादी करके प्रोम आती है, तो उसको जो ध्यान रखा जाता है, उसको जैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है लोगों के साथ, जो एनवायरमेंट के साथ उसको परिचय करवाया जाता है, इंडिविजुअल के साथ, वातावरण के साथ, और उसका इंतजार जो हिसाब से रहता है, वैसे ही आपको नया कैंडिडेट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट किया है करियर बनाने के लिए, उसको आपको वेलकम करना है. साथ साथ में आपके जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, नॉमिनेशन है, कुछ भी फॉर्म भरवाना है, पीएफ है, ईएसआईसी है, व्हाटएवर, और जो भी आपको कलेक्ट करना है इंफॉर्मेशन, दैट यू कंटिन्यू विथ दैट. But this is joining formality is also one of the important part. The first impression is the last impression. You will not get the second chance to make the first impression. Then once you joining formalities you completed, then you should have the orientation program. Orientation program is to introduction program. Introduction with the people. यानी कि whatever the senior people in the organizations you introduce, you take a tour of the organizations, then according to the category of the persons, where he has to work the cross functionally, he has to coordinate the cross functionally, all the departments, he has to understand what is the business process, what are the activity to be performed in that department, अभी क्या चल रहा है, कैसे काम करते हैं, जिसके साथ उसको क्रॉस फंक्शनल काम करना है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करना है, कोऑपरेट लेना है, तो उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए. जैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कोई इंजीनियर्स को ज्वाइन किया है, तो उसको स्टोर्स डिपार्टमेंट्स के हमेशा स्पेयर पार्ट के बारे में उसको जानकारी लेनी चाहिए. तो क्या है उसका प्रोसेस, तो उसको 2 घंटे के लिए स्टोर्स डिपार्टमेंट में भेजिए कि स्टोर्स डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के साथ कैसा व्यवहार रहता है, अगर किसी को स्पेयर पार्ट चाहिए तो उसकी प्रोसेस क्या है, इश्यू करवाना तो प्रोसेस क्या है, स्टोर डिपार्टमेंट कैसे काम करता है. तो ही विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज स्टोर्स एक्टिविटीज, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर हिम. वहां के लोगों के साथ उसका रिलेशन बनेगा, उसको समझेंगे, वो उसको समझेगा, तो वो हमेशा दूसरी दफा उसको जब काम होगा तो वो खुला दिल से वहां जा सकता है. वैसे ही मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलग अलग डिविजन्स में जाना पड़ेगा. तो उसमें कौन सी क्रिटिकल मशीनरीज है, उसका ऑपरेट कौन करता है, ऑपरेशन कैसे होता है, उसका मेन हेड कौन है, कौन इंचार्ज है, किसके पास पावर है, कितने एम्प्लॉइज वहां काम करते हैं, तो उसका मेंटेनेंस का शेड्यूल क्या होता है. तो वो साथ बैठेगा, प्रोसेस समझेगा एक दिन के लिए, तो उसमें उसको समझ आएगा कि यस इधर इतने इतने लोग हैं, ये डिपार्टमेंट है, ये जगह पे ये मशीन आया, ये मशीन का नाम है, इसमें ऑपरेशन करने में इतना लोग लगते हैं, अगर इधर गलती होगा तो क्या असर होता है प्रोडक्ट में. एवरीथिंग ही शुड नो इन डिटेल. सिमिलरली एचआर के साथ उसको जब ओरिएंटेशन होगा तो एचआर के रूल्स रेगुलेशन के बारे में होगा. किसी को लीव एप्लीकेशन करना है तो उसके बारे में पता है, सैलरी कब मिलेगा, पीएफ के बारे में, ईएसआईसी के बारे में, सेफ्टी के बारे में, एवरीथिंग ही शुड नो. तो ऐसा ऐसा उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा. उसके बाद उसका 10 दिन 15 दिन का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग रहेगा, क्योंकि वो 100% हर मशीनरी को जानता नहीं होगा. तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में आया तो कुछ उसके लिए नई मशीनरी होगी, नई सिस्टम्स होगी, तो उसके लिए हैंड्स ऑन ट्रेनिंग रहेगा. तो वो सिस्टम प्रोसीजर्स का जो एसओपी होगा, उसका सीनियर और सिमिलर लेवल का कोई कलीग्स होगा, वो उसको हर एक्टिविटी समझाएगा, सिखाएगा,
और उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, उसका टूलिस्ट कहाँ होता है, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होता है, कौन कौन व्यक्ति कैसे काम करता है, वो पूरा 10-15 दिन का उसका या कभी कभी 3 महीने का उसका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगा। और उसको ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसके साथ उसको बोलते हैं कि अभी नाउ वॉट एवर ओरिएंटेशन प्रोग्राम यू लर्न अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, गिव द प्रेजेंटेशन। तो 10 या 15 दिन का ओरिएंटेशन खत्म होने के बाद उसको जो सीखा है उसके बारे में उसको प्रेजेंटेशन देना है। तो समझाएगा कि यस मैंने ये सीखा है, मैंने जानकारी ली है, और उसमें जहां भी कुछ कमी है तो उसके बारे में आप फीडबैक देंगे, उसको समझाएंगे। तो इसका एक रिव्यू मीटिंग होगा। उसके बाद व्हेन ही इज गोइंग टू बी ऑन द जॉब, तो क्या करना चाहिए? तो वी शुड हैव द शॉर्ट टर्म गोल विद द न्यू जॉइनिस। दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज व्हाट हैपन कि पर्सन्स at the joining, at the beginning of the career, first 6 months, if he goes in the comfort zone, then he will have the habit of the comfort zone and he will not deliver the results, required results. We have to keep the candidates, we have to keep the new joining employees out of the comfort zone. We have to keep them always on the stage zone. That we have to see that within 3 months, we need that you will learn these activities and perfectly take over independently. This is your short-term goal. Now, every month we will review with your HOD. HR, HOD, and that person will have the review session. Then the person has that mindset, they have the goal that, okay, within 3 months I have to show. Every month I have to present myself, where I am. Then he will start performing. And once he gets the habit of the right performance, he will continue going to be good employee. If you fail at the time of beginning, at the time of joining, and after that we cannot change the habit of the person. So if we want the persons as per our requirement, as per our culture, as per our need, we have to develop such system. The person has to deliver as per our required performance. Okay. Then after 6 months or 3 months, there is a probation evaluation process. At the probation evaluation process, you have to give the performance evaluation form on the probation to the respective HODs. They will give the ratings, remarks based on that. HR also have their own ratings and remarks, and they decide that whether the person should be confirmed or confirmation to be extended, or he or she will be terminated. So this is the total recruitment process till the employees is confirmed or confirmation is process completed. Okay, now the four R of recruitment I am going to explain you. What are the 4 R? You must be knowing about the right man at the right place at the right time. I had added the 4th R is the at right cost. Right man at the right place at the right time, and the 4th R is the right cost. Since management study we had learned about the 3 R, the 4th R is at the right cost. How to do it? I am going to explain you what are the 4 R, what is the right man, what is the right place, what is the right time, and what does it mean is the right cost. The first R is right man. Right means with what? जब हम लोग HR has to play bigger role to select the right man, because this is very much required. According to us, who should be the right man for this position? So what you have to look after in the person's, number 1, the person's character. As a person's, the character means the sum total of good habit. सद्गुणों का सरवारा टोटल इज कॉल्ड कैरेक्टर. अगर कोई भी व्यक्ति कितना भी कॉम्पिटेंट है लेकिन उसका कैरेक्टर सही नहीं, उसकी आदत सही नहीं है, तो सक्सेसफुल एम्प्लॉइज नहीं बन सकता है, सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग भी नहीं बन सकता है. तो आपको बीइंग एचआर प्रोफेशनल्स यू हैव टू सी दैट द वेदर इज द राइट पर्सन मींस
उसकी आदतें कैसी है, हाउ व्हाट काइंड ऑफ हैबिट्स ही हैज, दैट यू हैव टू वेरीफाई इट. Is the candidate having any bad habits? What are the good habits with him? So you have to verify the character of the candidate. His behaviors is connected with the characters. तो फर्स्ट इज एज अ राइट मैन यू हैव टू सी द कैरेक्टर. जैसे अगर आपको शादी करवाना है, अगर आपको शादी करना है तो आप जैसे लड़की को देखेंगे या लड़की लड़का को देखेंगे, तो अपने परिवार वाले को वो क्या देखेंगे कि वो परिवार के लड़का लड़के का चारित्र सही है कि नहीं, उसका आदत सही है कि जो बोलता है वही करता है कि जो अलग कुछ करता है, जो बताता है वही है कि और कुछ है. तो उसके लिए आपको कैरेक्टर हो जानना बहुत जरूरी है, राइट मैन. दूसरा, उसके पास कैरेक्टर तो है लेकिन कैरेक्टर्स को अमल में लाने के, इंप्लीमेंट्स करने के लिए, एग्जिबिट करने के लिए उसमें हिम्मत है क्या. मैं प्रामाणिक हूं लेकिन दूसरा कोई चोरी कर रहा तो उसको रोकने की मेरी हिम्मत नहीं है. मैं प्रामाणिक ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिव के हिसाब से उसके साथ में ऑनेस्ट रहना चाहता हूं, लेकिन मेरे को दूसरे लोग का डर लगता है कि वो लोग मेरे को धमकाएगा, तो वो मेरी प्रामाणिकता कुछ वैल्यू नहीं है. तो मेरे पास मेरा नॉलेज, मेरी स्किल्स, उसको यूज करने के लिए, इंप्लीमेंटेशन करने के लिए मेरे पास करेज है कि नहीं. मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा टाइम हम लोग ज्यादा लेंगे, लेकिन याद आ जाता है प्रैक्टिकल स्टोरीज, तो मैं आपको बता देता हूं. मैं एक साइट पे काम कर रहा था, वहां हमारा कंस्ट्रक्शन साइट था, अबाउट 1000 पीपल आर लिविंग देयर एंड द वर्कर्स हैविंग द हट, यानी वो बांबू का हट था, उसमें वर्कर्स लोग का अलग अलग खोली रहता था, उसमें लोग काम करते थे. और मई महीना था, अबाउट द 48 डिग्रीज की गर्मी चल रही थी एक बार, और हमारे यहाँ पूरी ऑन साइट इमरजेंसी प्लान था. यानी फायर फाइटिंग कौन करेगा, फर्स्ट एड कौन करेगा, कम्युनिकेशन का काम कौन करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या करेगा, रेस्क्यू कौन करेगा, सब कुछ वेल डिफाइंड था और सब लोग ट्रेन थे. लेकिन वो टाइम पे आग लगी, तो आग लगी, जो फायर फाइटिंग का लोग जो उसको ट्रेनिंग दिया था, वो लोग डेमो सब कुछ करके मॉक ड्रिल करके तैयार थे, लेकिन वो लोग आग को देख के डर गए थे, वो लोग सिस फायर के लिए नजदीक नहीं आए. लेकिन जो हमारे यहाँ कुछ पंजाबी और कुछ ऐसे बच्चे लोग थे, वो लोग जोश में आ गए और जो भी हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स लेके जहां आग लगी थी वहां पहुंच गए. उसके पास कैरेक्टर था, आग बुझाना चाहिए, मदद करना चाहिए, जो बोले सो नहाल करके पहुंच गए. लेकिन वहां जाके देखा कि वो फायर एक्सटिंग्विशर्स को ऑपरेट कैसे करे, वो उसका आता नहीं था. उसको जिसको आता था वो डर के मारे भाग गया. उसके पास कॉम्पिटेंस थी, कैरेक्टर भी था, लेकिन करेज नहीं था, हिम्मत नहीं थी कि वो आग में साला डर जाएगा. तो इसलिए वो लोग चले गए, लेकिन जिसमें हिम्मत थी, कैरेक्टर था, उसके पास कॉम्पिटेंस नहीं थी, तो वो लोग भी आग नहीं बुझा पाएंगे. उसमें लोग, कुछ लोग थे तो जिसने आग बुझाया. तो टू बी ए सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग you require 3C. नंबर 1, कैरेक्टर, करेज एंड कॉम्पिटेंस. तो आपको देखना है कि अगर आपको कोई व्यक्ति को सिलेक्ट करना है तो आपको तीनों बात को अच्छी तरह से समझना है, देखना है, और आपको जज करना है कि व्यक्ति में 3 चीज है कि नहीं है. कॉम्पिटेंस यानी कि काम करने के लिए जो काबिलियत चाहिए, जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है, वो टेक्निकल एंड बिहेवियर पाथ, जॉब बिहेवियर पाथ, जिसको बोलते हैं कॉम्पिटेंस. करेज यानी हिम्मत. उसके बाद से आप प्रैक्टिकल काम करवा के देख सकते हैं कि वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो अकेला काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसको हेल्पर को कैसे हेल्प कर सकता है, वो आप उसके बारे में देख सकते हैं. उसका आप प्रैक्टिकल टेस्ट भी ले सकते हो, अलग अलग टेस्ट करके वो करेज और कैरेक्टर के बारे में उसको अलग अलग क्वेश्चंस, यानी कि आप पूछ सकते हैं कि अगर आपको भी इंटरव्यूज में मैंने आपको बताना रह गया, व्हाट इज द जॉब ऑफ HR at the time of interviews? We are predicting the candidate's future behaviors about the job. यानी कि हम उसका भविष्यवाणी करते हैं. वो कैंडिडेट जॉब में सुटेबल रहेगा या नहीं सुटेबल रहेगा, उसका भविष्यवाणी करते हैं. उसका आधार क्या है? कोई भी व्यक्ति का भविष्य में कैसा जॉब बिहेवियर करेगा,
कोई भी बिहेवियर के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है कि भविष्य में, या आप चाहते हो कि कोई व्यक्ति कैसा बिहेव करेगा उसको समझना है, तो बिहेवियर साइंस का एक मंत्र है, द ह्यूमन बीइंग will behave similarly in similar environment, similar conditions. यानी कि समान परिस्थिति में व्यक्ति एक समान वर्तन करता है। यानी कल जो परिस्थिति मेरे को पसंद नहीं थी, उसमें जो मैंने वर्तन किया, आज सेम परिस्थिति आएगी तो मैं ऐसा ही वर्तन करूंगा। इसलिए हम इंटरव्यूज में कैंडिडेट का पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, पास्ट वर्क बिहेवियर के बारे में पूछते हैं, पास्ट एक्टिविटीज यानी कि काम कैसा करता था, कौन सा मशीन पे काम करता था, क्या मेंटेनेंस करता था, सब कुछ हम उसका पास्ट बिहेवियर के आधार पे फ्यूचर बिहेवियर का आप जजमेंट करते हो। तो इसलिए आप इंटरव्यूज में बीइंग एचआर प्रोफेशनल यू हैव टू आस्क, यू हैव टू गो थ्रू हिज रिज्यूमे whether he was sincere in the childhood, whether he has the leadership skill at the childhood, experience of the childhood, उसका फैमिली सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है, वो फिजिकल स्ट्रेस ले सकता है कि नहीं, मेंटल स्ट्रेस ले सकता है कि नहीं, ये सब कुछ चीज आप उसका पास्ट रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से आप उसके अंदाज लगा सकते हो। और उसको आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस कर सकते हो कि अगर आपके काम कर रहे हो, यू आर द इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट, ऐसा सिचुएशन हो जाएगा तो what will be your action? According to his hypothetical questions, he will respond you. You can understand and analyze his mindset के ओके ये आदमी ऐसा है। तो आदमी का जो दिस इज यूनिक, ह्यूमन बीइंग इज यूनिक, सबका सोशियो साइकोलॉजिकल कंडीशंस ऐसा होता है, अलग अलग रहता है, सबका एजुकेशन अलग अलग रहता है, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग रहता है, तो वो हिसाब से एक सर का आदमी नहीं होता है, सब अलग अलग रहता है। तो अलग अलग सेम सिचुएशन में व्यक्ति अलग अलग बिहेवियर कर सकता है। तो आपको जो जॉब के लिए जो कैंडिडेट को पसंद करना है, उसकी पास्ट सिचुएशन क्या थी और हमको फ्यूचर सिचुएशन क्या चाहिए, पास्ट सिचुएशन में क्या बिहेव करता था, फ्यूचर सिचुएशन में क्या बिहेव करेगा, वो आपको जज करना है बेस्ड ऑन हिज पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट बिहेवियर्स। ओके, तो व्हाट इज द रोल ऑफ एचआर? टू predict the future behavior of the candidate at the future job. उसके लिए आपको पास्ट बिहेवियर का जजमेंट लेना पड़ेगा, उसके बारे में जितना क्वेश्चंस और रिज्यूमे में से आप और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन से आप जान सकते हैं कैसा फ्यूचर रहेगा। तो दिस इज द राइट मैन सिलेक्शन का प्रोसेस है। और चौथा क्या चाहिए आपको? उसका एटीट्यूड, उसका अप्रोच टुवर्ड द जॉब। कैंडिडेट में तीन सही बात है, लेकिन वो काम के प्रति उसका लगाव नहीं है। He does not have the interest to doing such job. He had the skills, competence, courage and characters, but he does not have the attitude to do job. He has mindset to have my own company. I will not physically work. I will work on the chairs and tables. So you have to see that what kind of attitude the person having. This is very much important, the job attitude. And number 5th, that is called health, physical fitness. आपने चारों चीज 5 चीज देख लिया, उसके बाद में 5वां चीज है हेल्थ, यानी कि अभी तो बहुत जरूरी है हेल्थ का, अभी इम्पोर्टेंस आपको पता है। तो while you are selecting the right man, being a HR person, you have to verify this all 5 things. It's a puzzle of 5 joints, 5 pieces puzzles, यानी कि right man, character, 3C, 1A and H. ओके, तो उसके बारे में आप लोग अपना टूल्स डेवलप कर सकते हो। और इंटरव्यू इज आई थिंक वेरी सेंसिबल एंड सीरियस प्रोसेस। यू हैव टू वेरी केयरफुल। इट इज नॉट ए टाइम पास और एक्टिविटीज दैट वी कैन डू कैजुअली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि whenever you are selecting the candidate for the organizations, is a liability to the organizations. Okay, so how you are making the asset for the organizations. The right selection is very much important. इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि the recruitment is 50% of total HR. Okay, good. Now the second R, it is called right place. Right place means
there is two things to be taken care. Which position the candidate to be required. First, आपको कैंडिडेट बहुत बार ऐसा होता है कि यू रिक्वायर सुपरवाइजर एंड यू अपॉइंट अ मैनेजर. Manager have different mindset and supervisor has the different working conditions. So you have to understand from the job descriptions that these are the activities. These activities to be performed by the supervisor or manager. According to the activities, you have to select for the supervisor. Or if you have the activity says that you require the leadership qualities, he has to control so many people, you have to report things, you have to analyze the things, then you have to go for the managers. So being a HR person at the right place, for which position you are looking for the person, for that you should know what is the job the person has to perform. Accordingly, you decide what is the right positions to be appointed. I have seen and I have observed and experienced that many organizations, the person is doing the clerical job is 90% time, he is appointed as a manager at the high salary. And many times I have seen the organizations, who person is almost doing the general manager's job and he is working as a supervisor or officer's positions at lower salary. In both situations, organizations will suffer. So the right place is very much important, what dedication and what is the reporting authorities, to whom he is going to reporting. Another thing is to whom he is going to reporting. Here, something psychological aspect also you have to take care. Number one, the person may be very good. Your selection may be very good. But the reporting to person, he is a wrong person. His HOD is going to be wrong person. वो दोनों का केमिस्ट्री मिलने वाला नहीं है. I had experienced one department head. I was looking after that time recruitment. In 9 months, we have recruited about 16 supervisors. And everybody has left. He does not find anybody suitable, or he do something and the person will leave the organizations. Then I find there is something wrong in that person. But otherwise, if I am wrong in the recruitment, some other departments, people, whoever I recruited, they are continually working since long. Why this department has the problem? Because the person wants to make his monopoly that in my absence, people will ask me only. Nobody else to be run this department without me. So without his information, we have to recruit somebody deputy to him who can replace him. Then the department will be settled. And we have done that. So you have to see that the persons जिसको आपके अंदर में, जिसके अंदर में आपको रखना है, जिसके साथ उसको काम करना है, तो दोनों का वहां का काम का एनवायरमेंट है, केमिस्ट्री मैच होना चाहिए. नहीं तो सही आदमी होगा, रॉन्ग जगह पे प्लेसमेंट हो जाएगा तो वो भी भाग जाएगा, उसको भगा दिया जाएगा या उसके साथ जमेगा नहीं. तो being a HR persons where the person has to perform his duty, वहां तक आपको जाना पड़ेगा. किसको रिपोर्ट करना, वहां का एनवायरमेंट क्या है, उसके साथ वो मैच होगा कि नहीं, वो भी आपको देखना पड़ेगा. पहले तो पोस्ट अपने मैनेजर या सुपरवाइजर से हो, किसके साथ कौन सा एनवायरमेंट में काम करना वो भी आपको देखना है. अगर मेट्रो सिटी की जो कोई लड़की हो गई और गुजरात के कोई गांव में उसका शादी करवा दिया तो कल्चर में वो फिट नहीं बैठेगी, वो सुखी नहीं होगी, वो हमेशा असंतुष्ट रहेगी. तो वैसे ही कोई अच्छा कल्चर में, अच्छा वातावरण में काम करके आया है व्यक्ति, उससे अच्छा उसका सिमिलर एनवायरमेंट उसको मिलना चाहिए. देन ही और शी विल बी सेटिस्फाइड व्हाइल वर्किंग. अदरवाइज दे विल लीव द जॉब. In short notice. Okay, so second R is the right place, right designation, right environment, and right reporting boss and colleagues. Okay, now we will move to the third R at the right time. Right time is when the person is required to perform. Recruitment का purpose क्या है वो आपको पता होना चाहिए. If you don't know what is the purpose of the recruitment, then
you will not decide the right time. In case of new organizations, you should know the when the person is going to be performing. यानी कि आपने कोई नई संस्था है, नई फैक्ट्री शुरू की है, नई ऑफिस शुरू की है, उसके लिए आप किसी को रिक्रूट करना है, तो आपको ये तय करना है कि कब से वो व्यक्ति कौन सी तारीख को, कौन से मंथ में उसका परफॉर्मेंस शुरू हो जाना चाहिए. बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि एक इंडस्ट्री थी हमारी, जिसमें हमने एम्प्लॉइज को एडवांस में रिक्रूट करके रख दिया, और जो मशीनरीज एवरीथिंग हैज टू कम आफ्टर 6 months. तो पहले 3 months तो वो लोग का ट्रेनिंग के बाद में वो लोग को ऐसे कुछ काम नहीं था तो वो ऐसे करते थे और सब रिलैक्स रहते थे. तो जब काम करने का मौका आया तब उसको काम करने की इच्छा नहीं होती थी, बिकॉज 3-6 महीना उसने आराम ही किया था और फुल सैलरी पाया था. तो उसके क्या हो गया कि जब परफॉर्म करना था तो वो कैसे भी करके काम को कैसे डिले करे उसके लिए वो लोग बहाने बनाते थे. जैसे हम लोग रिक्रूटमेंट के लिए सबसे पहला उसका कोई भी एम्प्लॉइज होगा, यूनिवर्सल है कि मैन पावर नहीं है. दिस इज द फर्स्ट रीजन. सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो लोग बताएंगे कि भाई मैन पावर नहीं है इसलिए नहीं है. तो रिक्रूटमेंट के लिए मेरे को उसके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि इंडिया के ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज और बेस्ट पीपल आई हैव कॉल फॉर द इंटरव्यूज, एंड ही सेड दिस इज नॉट सुटेबल, ऐसा है वैसा है करके सबको रिजेक्ट करता था. मैं शुरुआत में लगता था कि आई वॉज पॉजिटिव that he may be finding something better than this. But continuously it is happening, then I find that he is purposefully rejecting the people because he don't want to work. So I have made the total records of the people he has rejected and made the proper summarize. And when we have the meeting with the technical directors and MD, and they have asked that Mr. X, when we are starting the production. He has responded, sir, we are ready with the production, everything, but we are not getting the right people. The fingers is now pointing to me. The MD has said that, what happened, Nimesh? Why are you not getting the right people? I said, sir, we are not finding people as per the requirement of sir. I think I have to go to UAE or some other countries for the right to finding the people, because that person has come for the UAE. The sir has just shouted me, what are you saying? Yes sir, I am rightly saying that, because I have called the interviews across the India. More than 1,000 people have been interviews, and I have all the data and details. This person has been rejected by. These people are working somewhere and they're good people, and I have confidence that they are good people. And you know me how I am selecting. They know me. The directors and technical people knows me because I am working since long. Then the person has joined. The person says, okay, I got it. No problem. Now you don't have to ask anybody. You directly recruit. You sign the authority. You have all authority. You don't involve the production people for the recruitment. And I have recruited within a week total team. So sometimes you have to have the patience as well as the passion. शांति भी रखना पड़ेगा. राइट टाइम के लिए आपको सब ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो गए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी फेल. तो एचआर में ये सब ऐसा होता है. तो आपको देखना है कि 6 महीने के पहले उसको रिक्रूट कर दिया तो वो आदमी लेजी हो जाएगा. जब काम करना होगा तब ही विल नॉट डू दैट. तो एक तो नई कंपनी के लिए आपको देखना है कि जब मशीनरी कब आने वाली है, उसके लिए ट्रेनिंग का कितना टाइम लगेगा, और उसके लिए वो आदमी को एकदम पावर पैक एक्टिविटीज में बिजी रखना जरूरी है, तभी वो गलत आदत नहीं पड़े और आपको अच्छी तरह से परफॉर्म करे. बीइंग एचआर यू हैव टू टेक केयर दैट ऑल्सो. सेकंडली, अगर आपको किसी को रिप्लेस करना है तो वो रिप्लेस करना है तो उसके लिए आप कितने महीने पहले रिक्रूट करना है, जो उसका हैंडओवर टेक ओवर प्रॉपरली हो जाए, उसको ट्रेनिंग हो जाए, तो उसका टाइम डिसाइड करके आपको रिक्रूट करना है. एट द लास्ट डे जब किसी को निकालना है या किसी को रिटायर करना है, वो दिन अगर आपने उसको रिक्रूट कर दिया तो वो आदमी कंफर्ट जोन नहीं फील पाए करेगा और आधा अधूरा काम होगा और बोलेगा कि मेरे को ये पता नहीं है. तो 3-4 महीना उसके साथ काम करे, वैसा आपको करना पड़ेगा. तो यू हैव टू डिसाइड द राइट टाइम. राइट टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि कब से वो पर्सन का परफॉर्मेंस शुरू होना चाहिए, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ स्टार्टिंग द परफॉर्मेंस. अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन रख के रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू करना चाहिए.
Any recruitment is minimum taking 45 days. कुछ 15 दिन में आपने किसी को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद he has to give the 1 month notice period to his existing company. In case of fresher, it's okay. Within 15 days, 1 month, you can find out the candidates. So you have to see that the position, availability of the candidates, and when the candidate required in the organizations. Accordingly, you have to plan total our recruitment process, considering the right time when the person is required. Okay? Now we will go to the सिचुएशन. सिचुएशन यानी कि पर्पस क्या होता है रिक्रूटमेंट में, किसी को रिप्लेस करना है, किसी को टर्मिनेट करना है, वो सिचुएशन के हिसाब से आपको किसी को पता भी नहीं चले. बहुत बार आपको ऐसा भी कॉन्फिडेंशियल काम करना पड़ता है, स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट करना पड़ता है कि किसी को रिप्लेस करना है तो वो कैंडिडेट को पता नहीं चलना चाहिए कि वो किसको रिप्लेस करने के लिए आया है, और जिस व्यक्ति को रिप्लेस करना है उसको भी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे लिए कोई कैंडिडेट को मेरी कंपनी ने रिक्रूट करके रखा है. तो दैट इज स्ट्रेटेजिकल एस्पेक्ट्स that you have to learn if you are going to work at the senior and higher position, the strategic HR, strategic recruitment process, you have to learn, and accordingly you have to do that recruitment. The situation is also making a lot of decisions based on that, when the person is required to perform. Okay. Then the fourth R is the right cost. How to derive the right cost? Number one, what is the market for that positions? मार्केट में इतना साल का एक्सपीरियंस, इतना नॉलेज वाला, इतना काम के लिए, पोजीशन के लिए कितना सैलरी रेट चल रहा है. दैट इज नंबर वन. दूसरा, व्हाट इज अवर इंटरनल रेट? इंटरनल इन द ऑर्गेनाइजेशन, सेम पोजीशन, सेम एक्सपीरियंस पीपल, व्हाट सैलरी वी आर ऑफरिंग टू देम. ये दोनों का नॉलेज बीइंग एचआर प्रोफेशनल यू शुड हैव. हम जो पोजीशन में किसी को रिक्रूट करने जा रहे हैं, उसका अपने ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी संस्था में उतना ही एक्सपीरियंस, उतना ही नॉलेज वाला, वही पोजीशन में काम करने वाला का सैलरी पगार क्या है, मार्केट में क्या पगार चल रहा है, वो दोनों आपको समझना चाहिए. तीसरा, दोनों में से किसकी जरूरत ज्यादा है. हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे एम्प्लॉइज की जरूरत ज्यादा है तो उसको मार्केट रेट से भी थोड़ा ज्यादा पगार या इंटरनल रेट से भी थोड़ा ज्यादा पगार देके रख सकते हैं. लेकिन उसको सामने वाले कैंडिडेट की नीड ज्यादा है तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू नेगोशिएट, एंड अकॉर्डिंगली यू डिसाइड व्हाट इज द राइट रेट. दूसरा एस्पेक्ट है कि आपको मार्केट में ऐसे कैंडिडेट नहीं मिल रहे, या ऐसे अनुभवी कैंडिडेट, जैसे हमारे यहाँ कोई ऐसे जॉब थे कि जिसके लिए अवेलेबल कैंडिडेट नहीं थे, तो उसके लिए आपको जॉब इवैल्यूएशन मेथड को इंप्लीमेंट करके राइट रेट डिराइव करना है, और वो हिसाब से राइट कॉस्ट क्या होगी वो डिसाइड करके कैंडिडेट को ऑफर करना है. जैसे मैंने इलेक्ट्रिशियन का जो एग्जांपल दिया था, वैसे ही आप जॉब इवैल्यूएशन करेंगे कि उसमें विंड मिल पे काम करने वाले के लिए सेफ्टी, टेक्निकल नॉलेज, मेंटल अलर्टनेस, वो सब ज़्यादा है तो उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा. पीसीबी में काम करने वाले को कुछ का दिमाग लगाने का नहीं है, मोनोटोनस काम है, वर्किंग एनवायरनमेंट, एयर कंडीशन है, कुछ रिस्क नहीं है, तो उसको कम से कम सैलरी मिलेगी. क्योंकि उसका नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, वर्क कंफर्ट है, तो उसको कम सैलरी मिलेगी. तो वो हिसाब से आपको जॉब इवैल्यूएट करके सैलरी रेट तय करना है. दिस इज द फोर्थ आर. जैसे दूसरा है कि हमने पोजीशन के लिए सैलरी तय कर दिया है कि ये पोजीशन के लिए हमने 70,000 देना है या 35,000 देना है, लेकिन जो कैंडिडेट आपके सामने इंटरव्यू के लिए आया है, उसने वो पोजीशन के लिए अप्लाई किया, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यू विल फाइंड दैट हिज वर्थ इज नॉट 35,000. हिज वर्थ, उसका वैल्यू, उसका जो मार्केट वैल्यू अराउंड 20,000 होगा, तो भी आप उसको 35 देंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा. तो आपको वो व्यक्ति का वर्थ भी समझना आना चाहिए, एचआर को वो भी समझना आना चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका कॉम्पिटेंस, उसका कम्युनिकेशन, उसका बिहेवियर, सब कुछ जज करके उसका वर्थ क्या होना चाहिए. वो बोलता है कि मेरे को तो वहां 50,000 मिलता है, लेकिन आपको वो देख के पता चलना चाहिए कि मार्केट में वो ऐसे व्यक्ति को 20,000, 25,000 ही मिल सकता है, 50,000 नहीं मिलता है. वो कुछ भी बोले. आजकल फोटोशॉप में सैलरी स्लिप, पेमेंट स्टेटमेंट सब कुछ बना के लोग लेके आते हैं. वो सब आने के साथ भी आपको पता होना चाहिए कि उसका वर्थ क्या है. मैंने ऐसे भी कैंडिडेट को इंटरव्यूज में पकड़े हैं कि वो दूसरा XYZ का पूरा एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब कुछ लेके आता है और वो बोलता है कि मैं XYZ हूं.
जब मैं डिटेल क्वेश्चंस करने लगा तो वो हिल गया। बाद में बोला कि अगर आप कबूल करते हैं कि मैं पुलिस को बुलाऊं, तो बोलता है सर ये मेरा जीजा जी का सर्टिफिकेट है। एक कैंडिडेट ऐसा था कि उसका एक आंख नकली थी, तो उसको क्वेश्चन पूरे, तो जब उसका बिहेवियर आंख में देखता था तो उसका एक आंख हिलता था, दूसरा आंख हिलता नहीं। तो मैंने बोला कि क्या है तुम्हारा आंख में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो बोला कि सर आप पहले व्यक्ति हो कि आपको पता चल गया, बाकी दूसरे कभी तक तो किसी को पता ही नहीं चला कि मेरे एक आंख नहीं है। तो व्हेन यू आर इंटरव्यूइंग यू हैव टू ऑब्जर्व इन टोटालिटी, आंख कान नाक हृदय से वो कैंडिडेट को देखना है, सुनना है, समझना है और राइट पर्सन को समझना है। तो इधर जो वर्थ है वो कैंडिडेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हिसाब से आपको जरूर समझना है कि ये कैंडिडेट को जो ये सैलरी जो मांग रहा है, ऑर्गेनाइजेशन जो सैलरी देना चाहता है उसकी उसको वर्थ है कि नहीं है। उसके हिसाब से भी आपको राइट सैलरी आपको देना चाहिए। दिस इज कॉल्ड 4th R। ओके, तो नाउ इट इज क्लियर, द वर्थ वर्सेस वर्क, द वर्थ वर्सेस पर्संस। ये दोनों चीज को समझने के बाद आपको तय करना है कि राइट कॉस्ट क्या रहेगी, राइट सैलरी क्या ऑफर कर सकते हो। उसके पहले आपको मैंने बताया कि भाई इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या है, मार्केट में क्या है, नेगोशिएशन पावर किसका ज्यादा है, वो हिसाब से कैंडिडेट का वर्थ पे कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड राइट कॉस्ट ऑफ द इंटरव्यू। उसके अलावा भी आपका इंटरव्यू प्रोसेस का जो कॉस्ट है, कभी कभी क्या होता है कि एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करने में आप बहुत लंबा टाइम देते हो, तो द एब्सेंस ऑफ दैट पोजीशंस इज कॉस्टिंग मोर टू द ऑर्गेनाइजेशन। वो भी आप निकाल सकते हो, उसका भी कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लगता है। तो आपको क्या करना चाहिए, हमने देखा है कि एक डेप्यूटी मैनेजर लेवल का हमको एक व्यक्ति को रिक्रूट करना था, उसका पूरा साल इंटरव्यू चला और इंटरव्यूज के लिए हमारे जो टीम थी वो फ्लाइट में जाती थी इंटरव्यूज के लिए इंडिया के हर अलग अलग कोने में। तो कैंडिडेट का कम से कम 3 साल का सैलरी है ना, वो इंटरव्यू उसका सिलेक्शन एक्सप्रेस में चला गया। तो जब वो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ, बड़ी कंपनी थी, इसमें चलती थी ऐसी बात, तो जब हमने उसको, हम लोग ज्वेलर यानी डायमंड बोलते थे, वो डिपार्टमेंट का डायमंड उसको हम बोलते थे, क्योंकि वो आदमी का पगार 30-35 हजार था, लेकिन उसका इंटरव्यूज का जो सिलेक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो पसंद ही नहीं पड़ता था JHOD को। तो आपको ये भी कॉस्ट देखना पड़ेगा कि रिक्रूटमेंट कॉस्ट क्या आ रहा है। ओके, तो ये हमने बोल दिया कि भाई 4 R ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, उसके बारे में बताया आपको, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस में बताया। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, द सिलेक्शन कैसे किया जाता है, हाउ टू डू द राइट सिलेक्शन। राइट सिलेक्शन में आपको क्या महत्व की बात ध्यान में रखना है उसके बारे में बताता हूं आपको। तो नंबर 1, यू हैव टू अंडरस्टैंड द जॉब। काम क्या करना है, काम के बारे में, व्हाट इज द जॉब, व्हाट आर द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय द कैंडिडेट, यू हैव टू थॉरोली नो दैट। और जॉब के साथ, काम के साथ द पर्सन, टोटल पर्सन को मैच करना है, यानी काम के बारे में उसकी जानकारी, टेक्निकल फिजिकल नॉलेज, जो कुछ काम के लिए नॉलेज चाहिए वो देखना है। एज ए पर्सन व्यक्ति कैसा है वो भी आपको देखना है, व्यक्ति की अपेक्षा क्या है, कौन से वो भी आपको देखना है। और फिजिकल फिटनेस, टेक्निकल नॉलेज, बिहेवियर, एवरीथिंग यू हैव टू मैच विद द जॉब। इस जॉब के लिए जो उसको जरूरी व्यक्तित्व है वो मैच होता है कि नहीं, वो आपको देखना है। तीसरा, आपको देखना है ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट्स, यानी कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट्स में उसका एक्सपीरियंस है, हमारे यहाँ जो एनवायरमेंट है उसको, जो डिपार्टमेंट में जो लोगों के साथ काम करना है उसके साथ वो कितना मैच होगा। ये तीनों बात सबसे ज्यादा मैच होगा, वो कैंडिडेट आपके लिए ऑप्टिमम आउटपुट देगा। इट इज क्लियर टू ऑल। At the time of selection, you have to match the 3 things at the end: the job, the person and the environment. ये तीनों चीज बराबर रहेगी तो वो कैंडिडेट का परफॉर्मेंस सही रहेगा।